Hello student, welcome to my YouTube channel. Today our topic is poem number 2 from the book Flamingo, and poem is entitled as An Elementary School Classroom in a Slum, and this one poem is composed by Stefan Spender. Stefan Spender is the poet of this poem. So first of all, I just want to tell you what is the meaning of the title An Elementary School Classroom in a Slum. So students, an elementary school means a primary school, and classroom, it means a primary school's classroom in a slum. Slum means, you can say, slum means a jhuggi basti in Hindi. I think you have ever seen, if you have ever seen a jhuggi basti, how type of people live there. So let's start the poem. But first of all, starting the poem, I just want to ask you that you have ever seen an elementary school. Not only an elementary school, but a school which is in a slum. Have you ever seen it? Okay, have a look on the picture. This is a picture of an elementary school in a slum. You can see the children who are studying here. You can see that these children are not uniformed well. They have not proper uniform. Even look at their faces. Look at their faces. Look at their hair. Look at their hair. Huh? Look at their dresses. Okay, again look at their hair. So you can see and you can imagine that how would be a slum school, and what would be a condition of an elementary school which would be in a slum. So let's start the poem. But first of all, starting the poem, I'm just telling you about Stefan Spender, our poet Stefan Spender. My dear student, first of all, I just want to tell you about Stefan Spender, that there would be a chapter number 6 in our course in the book Flamingo. Stefan Spender name you will revise in this chapter, and Stefan Spender plays an important role in this chapter. So let's remember this one name, Stefan Spender. Okay, come here. Have a look. An elementary school classroom in a slum. He has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि स्टेफन स्पेंडर जो थे कम्युनिस्ट हुआ करते थे बहुत बड़े। वो बात और है कि बाद में उन्होंने डेमोक्रेसी में बिलीव उनका हो गया था, तो उन्होंने कम्युनिज्म को छोड़ दिया था। सो यू नो व्हाट इज़ अ कम्युनिज्म? कम्युनिज्म इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट बिलीव दैट the whole economy of the world should be divided into the people of the world, equally divided. So you can see here he has concentrated on theme of social injustice एंड क्लास इन इक्वालिटीज़। तो क्या है स्टेफन स्पेंडर क्या कहना चाह रहे हैं? ही वॉन्ट टू कंसनट्रेट, वो अब हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं हम सब रीडर्स का, किस तरफ? सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इन एक्वलिटीज़ की तरफ। कि जो वर्ग विभाजन समाज में हुआ है, सोसाइटी में हुआ है, समाज में जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि आजकल की लैंग्वेज में बीपीएल या इस तरह के लोग जो होते हैं, या कह सकते हैं जो स्लम में रहने वाले जो लोग होते हैं, उनके साथ जो सोशल इनजस्टिस होता है, सामाजिक अन्याय जो होता है, क्लास इन इक्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि वर्ग विभाजन कर दिया है कि कुछ लोगों को बहुत ही गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, दे कैन नॉट सर्वाइव देयर लाइव्स। तो इस तरह के लोगों के बारे में स्टेफन स्पेंडर लिखते हैं। सो लेट recite the poem. But first of all, before you read, have you ever visited or seen an elementary school in a slum? What does it look like? Okay, what the poet is saying, have you ever visited or seen an elementary school in a slum? What does it look like? So I already told you in the picture. Have a look again. Okay, you can see here.
Look at the picture. These are the children. Okay, student, look here. Look here. This is the wall of an elementary school in a slum. Have a look on these children's. Now let's start the poem. I'm giving you line by line explanation. Keep concentrate. Far, 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 far from gusty waves, these children faces. Far, far. Far, far from gusty waves. First of all, the first word is gusty. Gusty means energy. Gusty means energy. Energy. So the first one word gusty waves these children faces. So what the poet is describing in this line, he's describing about the faces of the children who are reading in the classroom ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल विच इज़ इन अ स्लम. तो एक स्लम है, एक झुग्गी बस्ती है, वहाँ पर जो एक एलिमेंट्री स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है, एक प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पे जो उस स्कूल का जो क्लासरूम है, इस क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे हैं. तो फर्स्ट वन थिंग इज़ टेलिंग अबाउट हिम दैट ये जो चिल्ड्रन हैं, इन चिल्ड्रन के जो फेसेस हैं वो कैसे हैं. गस्टी वेव्स, समुद्र की जो वेव्स होती हैं, लहरें होती हैं, वो कैसी होती हैं, एनर्जेटिक होती हैं बहुत ज़्यादा. तो बहुत ही एनर्जेटिक जो लहरें होती हैं, तो इन बच्चों के चेहरे उस एनर्जी से फार फार फ्रॉम, इट मीन्स ये जो बच्चे इस स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, झुग्गी बस्ती के उस प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, उस क्लासरूम में जो बच्चे अभी बैठे हैं, उन बच्चों के जो फेसेस हैं वो एनर्जी से बहुत बहुत दूर हैं. नाउ व्हाट ही इज सेइंग, like rootless weeds, the hair tone round their pallor. So what is the meaning of it? Like rootless weeds. Weeds, do you know what is the meaning of weed? Okay, I'm telling you, just have a look on the picture. Dear student, this is called weed. In Hindi it is called खरपतवार. खरपतवार क्या होता है कि जो हमारे खेत में एक ऐसी घास होती है जो अननेसेसरी अनवांटेड होती है, उसको हम निकाल कर फेंक देते हैं क्योंकि वो जो भी हमारे खेत में फसल होती है उसके न्यूट्रिशंस को वो ले लेता है, इसलिए उसको निकाल दिया जाता है. तो अनवांटेड जो ग्रास होती है दैट इज़ कॉल्ड वीड. सो rootless weed, their hair torn round their pallor. So the hair torn round their pallor, pallor means forehead. तो उनके जो हेयर हैं, उनके जो हेयर हैं, बाल हैं, वो क्या है, like rootless weed. उनके जो बाल हैं, उनके जो हेयर हैं, उनके माथे पे ऐसे लटके हुए हैं जैसे कि रूटलेस मीन्स बिना जड़ वाली कोई घास लटकी. तो बाल कैसे लग रहे हैं उनके माथे पे, ऐसे लटके हैं जैसे कि बाल ना हो बल्कि रूटलेस वीड हो, बिना जड़ों वाली कोई घास लटकी हो. इतने उनके रफ बाल हैं, ऐसा लगता है मम्मी ने कंघी करके भी नहीं भेजा है, शायद उठ के चले आए हों, ऐसे ये बच्चे दिखने में लग रहे हैं. सो थर्ड लाइन नाउ, द टॉल गर्ल with her weighted down head. So third one thing poet is telling us about a tall girl. So first one thing he told us about children faces, that children faces are gusty, far from gusty waves. Second one thing he's telling about us about their hair, that their hair are just like rootless weed. The third one thing the poet telling us अबाउट द टॉल गर्ल, देयर इज़ अ गर्ल हु इज़ टॉल, एक लड़की है जो बहुत लंबी है, विद हर वेटेड डाउन हेड, उसका सिर जो है बहुत भारी भरकम है. अब भारी भरकम सिर का क्या मतलब है यहाँ पर, वेटेड डाउन हेड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेटेड डाउन. ये नहीं है कि उसका सिर बहुत भारी है, बहुत ही वजन है उसके सर में. वेटेड डाउन हेड का ये मतलब है कि उसके जो माइंड है, हेड से यहाँ पर मतलब है माइंड से, तो जो उसके माइंड में बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे ड्रीम हैं उसके माइंड में, लेकिन शी नो बेटर दैट उसके ड्रीम्स
शायद उसके ड्रीम जो है कभी नहीं सक्सेस होंगे, शी नोज़ बेटर। तो इसीलिए पोइट यहाँ पर कह रहे हैं कि हर वेटेड डाउन हेड, वेटेड डाउन मीन्स कि सपनों से भरा हुआ जो उसका दिमाग है वो लड़की है यहाँ पर एक। तो थर्ड वन थिंग पोइट इज टेलिंग हेयर अबाउट अ टॉल गर्ल दैट शी इज़ अ ड्रीमी गर्ल वी कैन से। तो one thing I just want to tell you students, you can look here, this is like, so there's a poetic device that is called simile. I have told you in last video too, it is a poetic device that is called simile. सिमली जहाँ पर भी लाइक और एज वर्ड्स को कंपेयर करने के लिए किया जाता है वहाँ पर सिमली पोएटिक डिवाइस होती है. फिगर ऑफ स्पीच इज सिमली. ओके, सो द पेपर सीमिंग बॉय, the paper seeming boy with rat's eyes. Okay, the fourth one thing poet is telling us about a paper seeming boy. Paper seeming means एक कागज की तरह पतला एक लड़का है इस क्लासरूम में with rat's eyes, और उसकी आंखें कैसी हैं, चूहे की तरह है. अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक कागज़ जैसा कोई लड़का हो. कागज़ जैसा पतला भी कभी कोई होता है क्या, या चूहे जैसी आंखें भी किसी की होती हैं क्या? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी पोएट ने एक पोएटिक डिवाइस यूज़ की है जिसको कहा जाता है मेटाफोर. यू जस्ट नोट इट, मेटाफोर. मेटाफोर इज़ आल्सो अ फिगर ऑफ स्पीच जहाँ पर कंपेयर तो कर रहे हैं किसी चीज़ से लेकिन लाइक और एज इन वर्ड्स को यूज़ नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होती है मेटाफोर. सो पोएट यूज्ड अ पोएटिक डिवाइस हेयर. इसीलिए पोएट कह रहे हैं कि कागज़ के जैसा पतला लड़का है जिसकी आंखें चूहे की तरह है. अब चूहे की तरह आंखों का क्या मतलब है कि चूहे जैसी आंखें, क्या आपके माइंड में क्या आ रहा है कि क्या है चूहे की तरह आंखें, कैसी आंखें होंगी उसकी? सो आई एम टेलिंग यू, हैव अ have a look on the picture of a rat. You can see the eyes of a rat. कैसी है चूहे की आंखें? somebody छोटी छोटी, no, it is not about छोटी छोटी eyes. सो स्टूडेंट, चूहे की आंखें आप देखें कैसी लग रही हैं आपको, छोटी छोटी आइज़. हाँ, लेकिन यहाँ पर चूहे की आंखों से मतलब छोटी आंखों से नहीं है. चूहे की आंखें देखिए आप बाहर की तरफ उभरी हुई हैं, है ना. लेकिन वन मोर थिंग इज़ हेयर यू कैन सी अबाउट रैट साइज, दैट चूहे की जो आंखें होती हैं ना, दे अ रैट इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर फूड, यू नो. सो रैट आइज मीन्स मतलब वो जो लड़का है, जो कागज़ की तरह पतला लड़का है, उसकी आंखें चूहे की तरह है. तो आई टोल्ड यू दैट रेड आइज मीन्स लुकिंग फॉर फूड. इट मीन्स ये जो लड़का है ना, ये माल न्यूट्रिशन लड़का है, कुपोषण का ये शिकार लड़का है, भूखा वो है, उसको अच्छे से खाना कभी नहीं मिलता है, इसीलिए वो चूहे की तरह उसकी आंखें जो हमेशा खाने को तलाशती रहती हैं, उसको अच्छे से कभी खाना मिला नहीं, माल न्यूट्रिशन ये बॉय है. सो द स्टंटेड स्टंटेड मीन्स यू कैन से कि पूरी तरह से जो विकसित नहीं है. एक जो बच्चा है कागज़ की तरह पतला, शायद इसीलिए ये इतना पतला है क्योंकि एक तो ये माल न्यूट्रिशन है और इसीलिए शायद इसकी जो बॉडी है पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है. अनलकी अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्ड, अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्ड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि दिस वन वर्ड some student called it hair, some student call it hair, while this is not hair, this is called air. Again, this is called air. So unlucky air. So poet is telling about this boy that this boy is an unlucky heir of ट्विस्टेड बॉन्स रिसाइटिंग अ फादर गनार डिजीज़. तो ये जो लड़का है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं कि एक लड़का है जो कि
वो लड़का कैसा है, अनलकी है, उसकी चूहे जैसी आंखें हैं, कागज़ की तरह वो पतला है, स्टंटेड है, डेवलप नहीं है उसकी बॉडी। और साथ ही पॉइंट कह रहे हैं कि अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। अनलकी एयर, अनलकी मीन्स दुर्भाग्यवश, एयर, एयर है वंसस, एयर मीन्स वंसस है, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, उसकी जो हड्डियां हैं वो मुड़ी हुई हैं। क्यों मुड़ी हुई हैं? क्योंकि वो एक अनलकी एयर है। किसका अनलकी एयर है वो? रिसाइटिंग अ फादर गनाल डिजीज, क्योंकि वो एक ऐसे पिता की संतान है, एक ऐसे पिता का पुत्र है, ऐसे पिता का वंशज है जो कि गनाल्ड की डिजीज से पीड़ित है, हु इज सफरिंग फ्रॉम गनाल डिजीज। सो बिकॉज ही इज द सन ऑफ एज अ फादर हु इज सफरिंग फ्रॉम गनाल डिजीज, सो हिज बोन्स also twisted. But do you know what is a Ganal disease? Okay, student, have a look on this picture. This is a picture of a patient who is suffering from the disease Ganal. We can say this disease as Gathia. Gathia by in our language we call this. So you can see here that the bones of this patient, um, bones are twisted of his hand. Na? You can see here. Look here. This is called Ganal disease. Okay. Okay, so what the boy is doing? This one boy, his lesson from his desk. This one boy who is paper simming boy, he is learning his lesson from his desk. अपने डेस्क पे बैठा हुआ ये बच्चा जिसकी ट्विस्टेड बोन है, जिसको गनाल डिजीज़ है, ये बच्चा अपने डेस्क पे बैठा हुआ अपने लेसन्स को लर्न कर रहा है. ओके, वी हैव रिसाइड 4 things in this poem. First one thing we recite about children faces. Second thing we learn about their hair. Third one thing we learn about a tall girl. And fourth one thing we learn about unlucky air of twisted bone. So fourth thing we learn in this stanza. So fifth one thing we have to learn now. Uh, at back of the dim class, one unnoted, sweet and young. So what the poet is saying? Poet is saying that at back of the dim class, इसी dim class में पीछे. तो so what is the meaning of dim class? Dim, of course you can say dim is dhundla, but here dim means not dhundla. It is not presenting dhundla here. dim का यहाँ पर मतलब है कि ये जो ऐसी क्लास है जो कि डिम ही है, शायद डिम इसलिए कह रहे हैं पोएट यहाँ पर क्योंकि डिम का मतलब यहाँ पर है कि अंधेरे से भरी. अंधेरे का मतलब यहाँ पर है अज्ञानता से भरी. यहाँ पर बच्चों को ज्ञान नहीं मिल रहा है प्रॉपर जो मिलना चाहिए उन्हें, तो इसीलिए इस क्लास को पोएट ने कहा है डिम क्लास. तो एक इसी डिम क्लास में एक अननोटेड बॉय है, अननोटेड बॉय, स्वीट एंड यंग. तो एक बच्चा है जो जिसको कि नोटिस नहीं किया जा रहा है, अननोटेड है वो, लेकिन वो बच्चा है कैसा? वो बच्चा बहुत ही स्वीट है और यंग है, छोटा है, वो बहुत ही प्यारा सा है, छोटा है. एंड हिज आइज लीव्स इन ड्रीम ऑफ स्क्वायरल ड्रीम. सो हिज आइज लीव्स इन ड्रीम, वो सपने देख रहा है क्योंकि वो अननोटेड है, क्लास में टीचर उसको नहीं देख रहे हैं तो वो तो अपने ही सपनों में खोया है. उसको कोई ही इज़ नॉट अवेयर दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द क्लास. क्लास में जो कुछ भी हो रहा है वो अवेयर नहीं है, उसको नहीं पता क्लास में क्या पढ़ रहे हैं, वो तो अपने ही सपनों में खोया हुआ है. शायद लास्ट डे उसने एक स्क्वायरल को देखा था, ऑफ स्क्वायरल्स गेम इन ट्री रूम अदर दैन दिस. तो लास्ट डे उसने जो स्क्वायरल को देखा था जिसने कि ट्री में अपना रूम बनाया हुआ था, वो वहाँ पर उछल कूद कर रही थी. शायद हो सकता है वो उन्हीं सपनों में अपने खोया हो या इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है. सो students, I think you better learn this stanza. So come to the second stanza now. On sore green walls donation Shakespeare had. So what the poet is saying, on sore cream walls. So this one line is very important line. Keep concentrate. On sour cream wall. So student, sour cream means खट्टी क्रीम. You can say कि बासी जो क्रीम मलाई हो जाती है, क्रीम, खट्टी क्रीम का कलर कैसा होता है? फर्स्ट ऑफ यू टेल मी.
सो यू बेटर नो आई थिंक कि जैसे पीला जैसा हो जाता है, पेल कलर होता है सोर क्रीम का, तो ये जो क्लासरूम की जो दीवार है, वॉल्स हैं, ये भी कैसी हो गई हैं जैसे कि खट्टी क्रीम होती है, सोर क्रीम होती है ना पेल कलर की, वैसे ही ये जो वॉल है इस क्लासरूम की, ये भी सोर क्रीम की ही तरह पेल हो चुकी हैं. Okay, have a look on this picture. I'm telling you in through this picture you will know better. Look at the wall. Have a look at the wall. This is the wall of this elementary school classroom. So you can look here, the color of wall. It is the pale color, off-white color you can say. So सो सो पोइट इज सेइंग दैट ये जो ऑफ वाइट कलर की जो वॉल हो चुकी हैं, दीवारें हो चुकी हैं इस क्लासरूम की, डोनेशंस शेक्सपियर्स हैड. यहाँ पर क्या लगा हुआ है, किसी ने शायद डोनेशन में दिया है, किसी ने शायद दान किया है, लेकिन दान क्या किया है, शेक्सपियर्स हैड, शेक्सपियर के सिर को. दैट इज़ नॉट द मीनिंग कि शेक्सपियर के सिर को दान किया है, इट इज़ नॉट पॉसिबल. शेक्सपियर के सिर को दान करने से मतलब है शेक्सपियर का कोई पिक्चर यहाँ पर लगा है इस वॉल पर, जो कि शायद किसी ने डोनेट किया है. ओके, हैव अ लुक ऑन शेक्सपियर पिक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल. Shakespeare picture I am showing you. So student, this is the picture of William Shakespeare. I think you all better know about Shakespeare. Actually, Shakespeare is my favorite writer, and who is here who doesn't know to Shakespeare, है ना. क्या लिखते हैं शेक्सपियर, या यूँ कहिए कि क्या नहीं लिखते शेक्सपियर, क्या नहीं लिखा है उन्होंने. तो शेक्सपियर तो मेरे फेवरेट राइटर हैं ही. और ये आप देख सकते हैं शेक्सपियर का पिक्चर यहाँ पर है. तो सेम ऐसा ही एक पिक्चर इस क्लासरूम की उन 100 वॉल्स पे भी लगा हुआ है. बट वन थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू इन दिस पिक्चर कि शेक्सपियर का जो सर है ना, यू कैन सी हेयर दैट इट इज़ बाल्ड. थोड़े गंजे हैं ये शेक्सपियर. ये मैं क्यों कह रही हूँ अभी आपको समझ में आने वाला है. सो पोएट इज सेइंग दैट इन खट्टी क्रीम जैसी दीवार यानी ऑफ वाइट कलर की जो वॉल है, यहाँ पर एक शेक्सपियर का एक पिक्चर लगा हुआ है. एंड क्लाउडलेस एट डान सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग ऑल सिटीज बेल फ्लोरी टायरोलीज वैली ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ड्स इज वर्ड्स. सो यहाँ से हम मीनिंग समझेंगे. अ ओपन हैंडेड मैप तो क्या है, फर्स्ट वन थिंग कि यहाँ जो वॉल है, यहाँ पर एक तो शेक्सपियर का एक पिक्चर यहाँ पर लगा हुआ है. सेकेंड वन थिंग ही इज सेइंग द ओपन हैंडेड मैप, एक ओपन हैंडेड मैप यहाँ पर नक्शा है, मानचित्र यहाँ पर दूसरा इस वॉल पे लगा हुआ है. और वो मैप जो है वो कैसा है, क्लाउडलेस है. डॉन 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 मीन्स होता है सुबह का समय, जिसको हम कहते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त भी हम लोग कह देते हैं उसको. सो डॉन क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग ऑल सिटीज़. तो सुबह सुबह कैसा हो रखा है ये जो मैप है, सुबह सुबह का इसमें ऐसा लगता है जैसे सुबह सुबह का कोई सीन है इस मैप में. क्लाउडलेस, बिल्कुल भी क्लाउड इस मैप में नहीं दिखाई दे रहे हैं. सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग ऑल सिटीज़, और ये जो सिविलाइज्ड डॉम है राइडिंग ऑल सिटीज़, तो यहाँ के जो सिविलाइज्ड लोग हैं वो पूरे शहर में यहाँ पर घूम रहे हैं. एंड बेल फ्लोरी टायरोलीज वैली, और क्या है ये जो टायरोलीज वैली है, एक घाटी है, एक वैली है जिसका नाम है टायरोलीज वैली. उस वैली पे जो घंटी नुमा जो फूल यहाँ पर लगे हुए हैं, ये सब इस मैप में दर्शाए गए हैं. अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, द पोएट इज सेइंग अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड. इस मैप में ये सारा एक अलग ही दुनिया इस मैप में बसी हुई है. ये जो मैप यहाँ पर लगा है, ये सब चीज़ें उस मैप में हैं, और इस मैप में मानो एक अलग ही दुनिया बसी हुई है. एंड yet
एंड येट फॉर दी चिल्ड्रन दिस विंडोज नॉट दिस मैप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स, को ध्यान से समझ लीजिएगा। एंड येट, लेकिन फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, ये बच्चे जो इस क्लासरूम में पढ़ते हैं, इस क्लासरूम में जितने भी झुग्गी बस्ती से बिलोंग करने वाले जो बच्चे हैं, दीज विंडोज नोट दिस मैप दियर वर्ल्ड। ये जो खिड़की है, इस खिड़की से बाहर की जो दुनिया इनको दिखाई देती है ना, वही इनका मैप है, ना कि वो दुनिया जो कि इस मैप में दिखाई गई है। व्हाट डज इट मीन? मैं आपको इसको एक छोटी सी पोएम से समझाती हूँ। शायद आपने बचपन में एक पोएम ज़रूर पढ़ी होगी कि एक छोटी सी चिड़िया होती है। तो वो एक चिड़िया होती है, जब भी कोई चिड़िया अंडे में होती है ना, चिड़िया के बच्चे जब अंडे के अंदर होते हैं, तो अंडे के अंदर जब वो रहते हैं तो उन्हें लगता है कि अंडे जितना ही है संसार, इतना ही होता होगा, ये वर्ल्ड इतना ही होता होगा, क्योंकि उन्होंने अंडे से बाहर अभी आए नहीं है, उन्होंने सिर्फ उतनी ही दुनिया देखी है। तो उन्हें लग रहा है कि जितना अंडे में हमें दिखाई दे रहा है उतना ही है संसार। लेकिन जब वो बाहर आते हैं अंडे से बाहर घोंसले में, तो वो घोंसले तक ही सीमित होते हैं। उन्होंने घोंसले के बाहर से दुनिया कभी देखी नहीं है, नेस्ट से बाहर वो कभी निकले नहीं है। तो उन्हें लगता है कि नेस्ट के जितना ही वर्ल्ड है, ये जो नेस्ट है ना, यही वर्ल्ड होता है, इतनी ही दुनिया होती है बस। लेकिन थोड़े दिनों में वो नेस्ट से निकल कर, उस घोंसले से निकल कर ट्री पर आते हैं, तो उन्हें लगता है कि इस ट्री के जितना ही वर्ल्ड होता है होगा। सो बर्ड कहती है कि शायद इतना सा ही है संसार, इस पेड़ के बराबर। लेकिन जब वो थोड़े और ग्रो करते हैं, उनकी मदर बर्ड जो होती है उनको फ्लाई करना सिखाती है, तब उन्हें पता चलता है कि बहुत बड़ा है ये संसार। तो सेम कंडीशन अप्लाइंग हेयर विद दीज चिल्ड्रन। ये जो बच्चे हैं ना स्लम के, इन बच्चों ने स्लम से बाहर कभी दुनिया देखी ही नहीं है। केवल वो इसी स्लम में जो एक स्कूल है, एक एलिमेंट्री स्कूल है, यहाँ पर ये पढ़ने आते हैं। तो इन्होंने केवल इनकी खिड़की से बाहर जितना इनको दिखाई देता है, जहाँ तक इनको दिखाई देता है आसमान, तो इन्हें लगता है कि इतनी ही तो है दुनिया, इस स्लम की जितनी ही तो है दुनिया, इससे बाहर दुनिया है उन्हें पता ही नहीं। इसीलिए इन्हें लगता है कि ये जो मैप लगा हुआ है हमारे क्लासरूम में, ये शायद झूठा है, गलत है, ये क्या है, दे डू नॉट नो अबाउट इट, कि what is the meaning of this, what this thing is here. They don't know what this thing is here in this classroom. Why their teacher hang this map here, what is it? Nobody tell them about this map कि ये भी भाई इतनी ही नहीं है दुनिया, दुनिया तो बहुत बड़ी है, उन्हें पता ही नहीं है। पता कैसे होगा? कभी किसी टीचर ने शायद उन्हें एक्सप्लेन ही नहीं किया, कभी बताया ही नहीं। तो उनके लिए तो दुनिया उतनी ही है जितना कि उनको खिड़की से बाहर दिखाई देती है। तो आगे पोइट कहते हैं वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फोग। तो उनकी दुनिया उतनी ही है जितना उन्हें खिड़की से बाहर दिखाई देती है, और यही वो दुनिया है जहाँ पर उनके फ्यूचर को फोग से पेंट किया जा रहा है। बेटा यहाँ पर फ्यूचर को फोग से पेंट करने का देखो, आप कोई भी है स्टूडेंट जो स्कूल में जाते हैं हम स्टडी करने के लिए, तो टीचर क्या कर रहे हैं? आपके फ्यूचर को कलर से पेंट कर रहे हैं ना, आपके सपनों में, आपके फ्यूचर में रंग भर रहे हैं। लेकिन ये जो बच्चे हैं ना, स्लम के बच्चे, इनके फ्यूचर को किससे पेंट किया जा रहा है? उनके फ्यूचर में क्या भरे जा रहे हैं? रंग नहीं भरे जा रहे हैं, धुंध भरी जा रही है इनके फ्यूचर में, फोग भरा जा रहा है इनके फ्यूचर में। इट मीन्स व्हाट डज इट मीन कि इनका जो फ्यूचर है ना, वो ब्राइट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान नहीं है, केवल है तो क्या, फोग। एंड फोग इज रिप्रेजेंटिंग अज्ञानता। अज्ञानता को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है फोग, कि धुंध भरी जा रही है, उनको कुछ भी चीज़ें क्लियर ही नहीं है। तभी सो पोइट इज सेइंग दैट उनके फ्यूचर में फोग फील हो रहा है। So that is our second stanza. I hope you got. Okay, these two lines are remaining from second stanza. A narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, caves, and star of birds. So, what is poet saying? A narrow street sealed in with a lead sky. इनके लिए तो दुनिया कितनी है,
इनके लिए दुनिया केवल वही है, वही नैरो स्ट्रीट, वही जो तंग गली है ना इनकी स्लम की, इनकी झुग्गी बस्ती की, सील्ड इन विद लीड स्काई, और उस झुग्गी बस्ती की उस तंग गली के ऊपर केवल आसमान है। तो इन्हें तो लगता है कि दुनिया केवल इतनी है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। ये लोग जो है ना झुग्गी बस्ती के, ये जो बच्चे हैं इस स्लम के स्कूल में जो ये बच्चे पढ़ते हैं ना, दीज स्टूडेंट्स आर फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स। इन बच्चों को पता ही नहीं है कि यहाँ पर वर्ड्स के रिवर, केप्स एंड स्टार्स भी होते हैं। यानी उनको ये वर्ड्स पता ही नहीं है, उन्होंने ये वर्ड्स कभी सुने ही नहीं है कि इस दुनिया में रिवर नाम की भी चीज़ होती है, केप्स भी कुछ होता है और स्टार्स भी कुछ होता है। आज तक उनकी डिक्शनरी में दे हैव नॉट डिक्शन ऑफ रिवर, केप्स एंड स्टार्स, ये शब्द, ये वर्ड्स उन्होंने कभी सुने ही नहीं है अपनी लाइफ में। सो वी कैन से दैट देयर फ्यूचर इज़ पेंटेड विथ फोग। इसीलिए अभी कहा गया कि उनके फ्यूचर को किस चीज़ से पेंट किया जा रहा है, फोग से पेंट किया जा रहा है। सो नाउ कम टू थर्ड वन स्टैंजा ऑफ द पोएम. This is very important stanza. Surely Shakespeare is weak. So I told you about Shakespeare. Surely Shakespeare is weak, the map a bad example. So what poet is saying? Surely Shakespeare is weak. Weak is a word. Weak. So weak means you can say बेकार की कोई चीज़. The map a bad example. The map a bad example. So what the poet is saying कि surely, निश्चित रूप से ही ये जो बच्चे हैं ना यहाँ पर जो स्लम में पढ़ते हैं, इनके लिए शेक्सपियर क्या है, एक बेकार की चीज़ है। और साथ ही जो मैप है ना वो भी एक बुरा एग्जाम्पल है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। ये जो मैप है ना, इस मैप में क्या लगी है, इस मैप में दिखाई जा रही हैं कुछ शिप्स हैं और साथ ही सन भी है एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। तो शिप एंड सन है, तो ये जो शेक्सपियर का जो सर है ना, वो अभी मैंने आपको बताया था कि वो थोड़ा गंजे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि सर पे क्या है, ये इसके सन जैसा क्या है, कौन है ये आदमी, दे डू नॉट नो अबाउट हिम। तो मैप भी क्या है, एक बुरा एग्जाम्पल है। लेकिन क्यों है बुरा एग्जाम्पल, शेक्सपियर को क्यों कहा है कि एक बेकार की चीज़ है, इनके लिए बेकार का आदमी है शेक्सपियर। और मैप जो है वो भी एक बुरा एग्जाम्पल है। और ये सब जो है ना शेक्सपियर और ये जो मैप यहाँ पर लगा है ना, ये इन्हें क्या टैम्प्ट कर रहा है, ये कह रहा है कि लव टैम्पटिंग देम टू स्टील। ये इनको क्योंकि सोसाइटी में वो पोजीशन नहीं मिलती है, तो ये सब चीज़ें देख के तो उन्हें क्या लगता है कि यार इनको चुरा लेते हैं हम लोग। तो चोरी करने के लिए ये ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर क्यों लगे हैं कि इनको ये यही शिक्षा दे रहे हैं कि यार चुरा लो हमें, यहाँ से चीज़ें चुरा लो, शेक्सपियर का फ़ोटो है इसको चुरा के ले जाओ, मैप में जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें उनको लग रही हैं उनको चुरा के ले लो, फॉर लाइव्स दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू अबाउट फर्स्ट टू लाइन कि शेक्सपियर को वीक क्यों कहा है यहाँ पर। देखो बेटा, शेक्सपियर क्या है ना, शेक्सपियर को हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर को जिन्होंने एक मुकाम पर पहुँचाया है वो है शेक्सपियर। तो शेक्सपियर जो है इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने कह सकते हैं कि बहुत बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन आप अगर एक नर्सरी क्लास के बच्चे से ये पूछोगे कि हु इज़ शेक्सपियर, तो ही कांट एक्सप्लेन ना, वो कैसे बता सकता है शेक्सपियर। तो शेक्सपियर उसके लिए क्या है, उस बच्चे के लिए जिसको ABCD ही पढ़ना ना आती हो, क्या वो शेक्सपियर के नॉवेल्स को कभी पढ़ पाएगा या शेक्सपियर को कभी जान पाएगा? नहीं ना। तो इन बच्चों के लिए जिनको अभी तक अल्फ़ाबेट तक नहीं आती हो प्रॉपरली, उनके लिए शेक्सपियर या उसके शेक्सपियर के लिखे हुए जितने भी ड्रामाज हैं, जितनी स्टोरीज़ हैं, जितने भी नॉवेल्स हैं, वो बेकार के ही तो है। इसीलिए शेक्सपियर से उन्हें क्या लेना देना, है ना। और जहाँ तक बात है मैप की, तो मैप के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि मैप उनके लिए एक बुरा एग्जाम्पल है, क्योंकि उनके लिए तो ये असली दुनिया है ही नहीं। ये मैप यहाँ पे लगा ही क्यों है, क्योंकि उन्हें तो यही पता है कि दुनिया तो इतनी ही है जितनी उन्हें खिड़की से बाहर दिखाई देती है।
तो what the poet is saying, tempting them to steal for lives that slyly turn in their cramped hole. तो अब ये सब चीज़ें समाज में, सोसाइटी में जो प्यार चाहते हैं वो ऊंचे तबके के लोगों से, तो अपनी लाइफ को क्या कह रहे हैं वो, फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल. उस जीवन को जीने के लिए उन्हें चुराना ही होगा, उस जीवन को जीने के लिए, वो जीवन जो कि उन्हें क्रैम्ड होल, उनके होल्स में, होल्स किसके लिए यूज़ किया है, होल्स मीन्स घरों में, क्रैम्प्ड कर दिया गया है. क्रैम्प का मतलब होता है ठूस ठूस के भरना, मतलब छोटे से जो उनके घर हैं, उन छोटे से घरों में वो ऐसे रहते हैं जैसे कि मान लो किसी चीज़ में किसी को ठूस दिया जाता है. क्रैम्प्ड का एक पिक्चर मैं आपके लिए यहाँ पर शो कर रही हूँ, so you can understand better what is cramped. So students, have a look on this picture. You can see this is a scene of a train. अभी अभी लॉकडाउन आपने सुना ही होगा, तो सभी काफ़ी सारे लोग अपने घरों की तरफ इस तरह ट्रेन से क्रैम्ड, ठूस ठूस के ट्रेन में भर गए थे अपने अपने घरों को जाने के लिए. सो दिस वन कॉल्ड क्रैम्प्ड, ठूस ठूस के भर दिया जाना इज कॉल्ड क्रैम्प्ड. सो व्हाट द पोएट इज सेइंग कि इनके क्रैम्ड होल में इनको ठूस ठूस के भर दिया गया है. सो इसीलिए उस छोटे से घर में बहुत घुटन के साथ वो रहते हैं, और अपना लाइफ को सरवाइव करने के लिए उनको ये जो चीज़ें हैं टैम्प कर रही हैं, स्टीलिंग करने के लिए, चोरी भी करना सिखा रही हैं, फ्रॉम फोक टू एंडलेस नाइट. और उस क्रैम्ड होल में ये रहते कैसे हैं, उस घर में ठूसे हुए से, उस छोटे से घर में इतनी क्रैम्ड होके वो कैसे रहते हैं, फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट, जहाँ पर कि दिन में फोग होता है और रात को एंडलेस नाइट जो होती हैं, उनके जो जीवन की रात है शायद वो कभी ख़त्म ही नहीं होती, शायद इसलिए एंडलेस कहा है. मीन्स अंधेरा तो उनके जीवन से कभी ख़त्म ही नहीं होता उनकी लाइफ से. क्योंकि अगर मैं बात करूँ इंग्लैंड की, स्टेफन स्पेंडर इज़ एन इंग्लिश पोएट, और वो इंग्लैंड के ही एटमॉस्फेयर पे उन्होंने वो लिखा है. तो एंडलेस नाइट मीन्स अगर मैं इंग्लैंड की बात करूँ तो आपको पता होगा कि कहा जाता है कि इंग्लैंड में तो एक हफ्ते में भी सूरज के दर्शन हो जाएं, सूर्य देव की तो बहुत बड़ी बात होती है. एक एक हफ्ते जहाँ पे सूर्य नहीं निकलता हो, सनराइजिंग जहाँ नहीं होती है, एक ऐसी कंट्री है इंग्लैंड. तो आपको पता होगा वहाँ पर हमेशा फोग ही रहता है. वहाँ के लोग शायद इसलिए गोरे भी बहुत होते हैं क्योंकि वहाँ पर ठंड हमेशा रहती है, तो इसलिए वहाँ के लोगों को गोरा कहा जाता है. गोरा बिलोंग्स टू इंग्लैंड ना. सो फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट, तो दिन भर उनके जीवन में, उनकी लाइफ में, उनकी कंट्री में फोग रहता है, उनकी स्लम में दिन भर फोग रहता है. एंड एंडलेस नाइट, अंधेरा तो उनके जीवन से कभी ख़त्म हुआ ही नहीं. ये अंधेरा मीन्स यू कैन से नॉट ओनली अंधेरा, डार्कनेस, इट मीन्स अज्ञानता, कि कभी भी इलिटरेसी उनके जीवन से कभी भी ख़त्म नहीं हुए. इलिटरेट हैं ये लोग. ऑन दियर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन wear skin peeped through by bones and spectacles of steel. So what poet saying, on their slag heap, on their slag heap. तो slag heap means कूड़े का ढेर. स्लैग हीप इज अ वर्ड हेयर. स्लैग हीप मीन्स कूड़े का ढेर. तो ये लोग जहाँ रहते हैं ना, वहाँ कूड़े के बड़े बड़े ढेर होते हैं, वहाँ पे ये लोग रहते हैं. एंड दीज चिल्ड्रन वियर स्किन पीप्ड थ्रू बाय बोन्स. और ऐसा लगता है कि जैसे ये जो बच्चे हैं ना, इन्होंने कपड़े नहीं पहने हैं. दीज चिल्ड्रन वियर स्किन पीप थ्रू बाय बॉन्स. तो इन बच्चों ने क्या पहनी है, ऐसा नहीं लगता है कि कपड़े पहने हो, क्योंकि बेचारे इनके पास शायद कपड़े होते भी नहीं हैं. और दूसरा ये कहना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो बच्चे हैं ना, ये चिल्ड्रन है, माल न्यूट्रिशन है, कुपोषित बच्चे हैं ये. तो इन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे कि इन बेचारों ने तो स्किन ही पहनी हो, चमड़ी ही इन्होंने पहनी हो. पीप थ्रू बाय बोन्स. और पीप्ड इज अ वर्ड. पीप मीन्स होता है झांकना, झांक रही हैं. थ्रू बाय बोन्स, इनकी जो हड्डियां हैं ना, इनकी जो बोन्स हैं ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि इनकी स्किन से बाहर झांक झांक के देख रही हो. तो यू कैन इमेजिन कि कैसे बच्चे हैं. बहुत ही माल न्यूट्रिशन बच्चे हैं ये, बहुत ही कमज़ोर हैं, वीक हैं, इतने दुबले पतले हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हिली हुई हड्डियाँ हैं ये. इनकी हड्डियाँ जो हैं स्किन से बाहर झांक झांक के देख रही हैं, जहाँ पर भी जॉइंट होते हैं बोन्स के. एंड
और क्या कह रहे हैं पोइट यहाँ पर कि एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील एंड स्पेक्टिकल ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास। तो भाई बूढ़े लोग भी होते हैं इनमें, सिर्फ बच्चे ही नहीं हैं। अगर बूढ़ों की बात करें तो, या बच्चों की भी बात करें जिनकी आई साइट वीक हो गई हैं बिकॉज दे हैव नॉट मनी, तो इनके अगर चश्मे कोई देख लेना कि इनके जो ग्लासेस होते हैं, इनके जो स्पेक्टिकल्स होते हैं ना, चश्मा जो होता है इनका वो कैसा होता है, स्टील स्टील का चश्मा होता है विद मैंडेड ग्लास। तो आप लोग सोच रहे हैं स्टील का चश्मा कौन सी बड़ी बात है, विद मैंडेड ग्लास। मैंडेड ग्लास का मतलब है कि टूटे हुए कांच का इनका जो चश्मा है ना, बार बार मैंड करवाया, बार बार रिपेयर कराया हुआ है उसका जो कांच है, और स्टील के हैं इनके स्पेक्टिकल। तो स्टील के स्पेक्टिकल हैव अ लुक ऑन स्टील स्पेक्टिकल। आई एम शोइंग यू द पिक्चर ऑफ स्टील स्पेक्टिकल. This is a spectacle of steel body. The frame of this spectacle has made by steel, and you can look here, the glass of this spectacle is mended. तो ये जो स्पेक्टिकल है, आप यू कैन इमेजिन कितना हैवी होगा ये, जब हम इसको नाक पे कैरी करेंगे अपने नोज़ पे तो कितना प्रॉब्लम फील होगा। और मैंडेड जो ग्लास है इससे आई साइट भी सही नहीं होगी हमारी। सो यू कैन इमेजिन कि कितना हैवी ये स्पेक्टिकल होगा। वन्नी पापा दे दो ना 5 मिनट प्लीज। दे देंगे पापा, यहाँ मत आना भी बुआ। सो इनके जो स्पेक्टिकल हैं वो स्टील के हैं। इन उसका जो ग्लास है वो बार बार मैंड किया हुआ है, लाइक बोटल बीट्स ऑन स्टोन्स। ऐसा लग रहा है जैसे कि, सो पोएट इज सेइंग लाइक बोटल बीट्स ऑन स्टोन। ऐसा नहीं लग रहा कि ये स्पेक्टिकल है, बल्कि लग क्या रहा है इनके स्पेक्टिकल्स को देख के जैसे कि बोटल तोड़ के रख दिया स्टोन्स के ऊपर। स्टोन की तरह जो हैवी फ्रेम है इनके स्पेक्टिकल के, उसके ऊपर बोटल, कांच की बोटल जो होते हैं उसके पीसेस को चिपका दिया हो किसी स्टोन के साथ। ऐसे इनके स्पेक्टिकल हैं दिखने में। सो रीड अहेड, रिसाइट अहेड, ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस फॉर फोगी स्लम। इन लोगों का पूरा जो टाइम है ना, वो इस फोगी स्लम में, इस धुंध से भरी हुई इस झुग्गी बस्ती में स्पेंड होता है। यहीं पर इनका पूरा टाइम स्पेंड होता है। इससे बाहर की दुनिया इन्होंने कभी देखी नहीं है, कभी गए नहीं ये लोग। अब जो है ये जो लाइन है, दिस वन लाइन, सो ब्लॉट दियर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डूम। दिस वन लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। सो ब्लॉट दियर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डूम। सो पोएट इज सेइंग हियर, ये जो पोएट है हमारे स्टेफन स्पेंडर, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कम्युनिज्म में ये विश्वास करते हैं, सोशल इन इक्वालिटीज़ के बारे में यहाँ पर हम सबको अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं रीडर्स को। सो क्या कह रहे हैं पोएट, सो ब्लॉट दियर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम। तो कह रहे हैं ना कि मैप जो है ना, ये जो क्लासरूम में जो मैप है ना, यहाँ पर क्या है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को दिखाया, सिविलाइज चीज़ों को दिखाया गया। तो इन झुग्गी बस्तियों को भी क्यों नहीं इस मैप में रिप्रेजेंट किया जाता, क्यों नहीं। ये जो कूड़े के ढेर पे ये लोग रह रहे हैं, कूड़े के ढेर के पास इनके जो मकान है, और क्रैम्ड होल में जो ये रह रहे हैं ना, इतनी गंदगी में ये लोग रह रहे हैं। अगर इस गंदगी को, इस स्लम को भी अगर प्रेजेंट किया जाए यहाँ पर इस मैप पे, तो ये मैप क्या हो जाएगा, ब्लॉट मीन्स क्या होता है, एक धब्बा, यू कैन से कलंक जैसा एक लग जाएगा। तो पोइट क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो मैप है ना, अगर इस पे इस झुग्गी को, इस स्लम को भी, या इस स्लम के एलिमेंट्री स्कूल को भी अगर रिप्रेजेंट कर दिया जाए ना यहाँ पर, तो ऐसा लगेगा जैसे एक काला सा धब्बा लगा दिया हो इस मैप पे, है ना। तो विथ स्लम एज बिग एज डूम, तो एक धब्बे की तरह, एक कलंक की तरह इस धब्बे जैसे स्लम को भी इस मैप पे क्यों नहीं प्रेजेंट करते, क्यों तुम अच्छी अच्छी चीज़ें ही दिखाते हो। तो शायद अगर इसको भी, इस झुग्गी बस्ती को, इस स्लम को भी, इन लोगों के रहने की जगह को भी इस मैप में प्रेजेंट किया जाता, तो शायद वो एक
ऐसा स्लम लगता जैसे कि मैप के ऊपर जैसे कि कोई धब्बा लग जाता है ना, वैसा ये शो होता। तो क्यों नहीं इसको भी मैप पर प्रेजेंट करते हैं लोग, जिन्होंने भी मैप बनाया उन्हें ये भी करना चाहिए ना, स्लम को भी प्रेजेंट करें इस पर। सो इन लास्ट वन स्टैंजा, सो स्टूडेंट्स ये जो लास्ट स्टैंजा है ना, ये पोएट सजेस्ट कर रहे हैं इसमें कि व्हाट शुड हैपन हेयर, कि क्या होना चाहिए इस्लाम में। ये जो एलिमेंट्री स्कूल है यहाँ पर एक्चुअली क्या होना चाहिए, कैसे यहाँ पर कुछ सुधार आ सकता है, कैसे यहाँ पर चीज़ें सही हो सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अनलेस governor, inspector, visitor. This map become their window, and these window that shut upon their lives like catacomb. सो what poet is suggesting here, unless, जब तक कि ऐसा ना हो कि, unless means जब तक कि ऐसा ना हो कि गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, तो क्या सजेस्ट कर रहे हैं पोइट, पोइट ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जब तक ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर नहीं आएंगे, वो आकर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी उनकी इन स्लम्स, उनके स्कूल्स के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को के लिए अवेयर होना चाहिए। इन स्कूल्स में उन्हें आना चाहिए, देखना चाहिए, विज़िट करना चाहिए, तभी स्कूल की और स्कूल के इन स्लम में रहने वाले स्टूडेंट्स की जो लाइफ है ना, वो फोक से थोड़ा दूर हो पाएगी। एंड दिस मैप बिकम देयर विंडो। और अगर वो लोग अवेयर होंगे, गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, ये सब लोग अगर अवेयर हो जाए ना, जागरूक हो जाए अपने काम के प्रति, अपनी ड्यूटीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर ये लोग करें, तो शायद ये जो मैप है ना, जो इस क्लासरूम के ऑफ वाइट कलर की वॉल्स पे लगा है ना, शायद उन्हें भी ये पता चले कि ये विंडो के बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि ये जो मैप में दुनिया है ये असली दुनिया है, ना कि वो जो उन्हें विंडो से बाहर दिखाई देती है। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब। और पोइट क्या कह रहे हैं कि एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब, ये जो खिड़कियां हैं ना, ये जो खिड़कियां हैं, इन खिड़कियों ने इन बच्चों को ऐसे कैद कर लिया है जैसे कि कैटाकॉम्ब होती हैं। तो फिर से वर्ड आया यहाँ पर लाइक। तो मैंने अभी आपको बताया था जहाँ भी एज और लाइक वर्ड होता है वहाँ पर पोइटिक डिवाइस यूज़ होती है सिमली। तो यहाँ पे सिमली पोइटिक डिवाइस पोइट ने यूज़ की है कि ये जो विंडो है ना, इन विंडो ने भी इन सभी बच्चों को, स्लम के इन सभी लोगों को, सभी बच्चों को इस एलिमेंट्री स्कूल में ऐसे कैद कर दिया इन खिड़कियों ने जैसे कि किसी को कैटाकॉम्स में कैद कर दिया जाता। अब कैटाकॉम्स क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो, कैटाकॉम्स होती हैं कि कब्र का तह खाना होती हैं। अब कैसे आप इसको समझेंगे, यू कैन अंडरस्टैंड बाय अ पिक्चर। आई एम शोइंग यू द पिक्चर। दिस इज अ कैटाकॉम्ब। So have a look here. What are here? Skeleton, yes, skeleton. तो अभी मैंने आपको बताया कि कैटाकॉम्ब क्या होता है, कब्रों का तहखाना होता है। तो एक्चुअली क्या है कैटाकॉम्ब, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। कैटाकॉम्ब क्या होता है कि काफ़ी अभी अभी लॉकडाउन में आपने सुना होगा ना कि कुछ कंट्रीज़ ने कब्रिस्तान के लिए ज़मीन खरीदी क्योंकि कब्रिस्तान के लिए ज़मीन कम पड़ रही थी। सो हिस्ट्री में ऐसा पहले भी हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या था कि कुछ कंट्रीज़ में एंशियंट टाइम में ऐसा हुआ था कि कब्रिस्तान की कमी पड़ गई थी, तो कैटाकॉम्ब्स बना दी गई थी। कैटाकॉम्ब क्या था कि अंडरग्राउंड ऐसा कुछ बना दिया गया था जिसमें बहुत सारी लाशों को, जैसे जो वॉर हुआ करते थे, युद्ध हुआ करते थे ना, तो बहुत सारे वॉरियर्स जब उनकी डेथ होती थी, किल्ड हो जाते थे बहुत सारे वॉरियर्स, तो उनकी इतनी सारी जो डेड बॉडीज़ होती थी उनको कहाँ ब्यूरिड किया जाए, कहाँ उनको दफनाया जाए, तो उसके लिए कैटाकॉम्ब्स, अंडरग्राउंड एक कैटाकॉम्ब्स बनाई जाती थी और बहुत सारे डेड बॉडीज़ को एक साथ ब्यूरिड कर दिया जाता था इन कैटाकॉम्ब्स में। तो अब के समय में यहाँ पर विजिटर्स जाते हैं इनको देखने, तो ओपन किया गया है विजिटर्स के लिए कि यू कैन सी। तो आप चाहें तो आप भी कैटाकॉम्ब को देख सकते हैं, एज अ म्यूज़ियम भी कुछ कैटाकॉम्ब्स दुनिया में खुले हुए हैं। सो तो आई होप आप कैटाकॉम्ब तो समझ ही गए होंगे। इन हिंदी यू कैन से कब्रों का तहखाना। तो ये जो खिड़कियां हैं ना इनके क्लासरूम की, इन खिड़कियों ने भी इनको कैटाकॉम्ब्स की तरह ही कैद कर लिया है अंदर ही अंदर। इन्हें पता ही नहीं है कि बाहर की भी कोई दुनिया है, इन सबको यहाँ पे कैद कर लिया है जैसा कि
कैटाकॉम्स में डेड बॉडीज़ को कैद कर लिया जाता है। डेड बॉडीज़ की तरह इनको भी कैद कर रखा है इन खिड़कियों के अंदर, इस एलिमेंट्री स्कूल की इन खिड़कियों के अंदर, क्योंकि यहाँ पर यू कैन से कि गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर कभी आते ही नहीं है, टीचर इनको अच्छे से पढ़ा ही नहीं पाते, इनको जो नॉलेज मिलनी चाहिए वो मिल ही नहीं रही है। सो अब पोइट जो है नेक्स्ट लाइन में देखेंगे आप क्या कह रहे हैं पोइट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, पोएट ये कह रहे हैं कि ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। क्या कह रहे हैं पोएट, गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर से कह रहे हैं कि ब्रेक को ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, कि तोड़ दो इन कैटाकॉम को, इन खिड़कियों को, इन कैटाकॉम्स को तोड़ डालो, इन खिड़कियों को तोड़ डालो। ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, तब तक तोड़ते रहो जब तक ये सब लोग शहर में ना पहुंच जाए। अब ये मतलब नहीं है कि खिड़कियां तोड़नी है क्लासरूम की और भाग जाना है शहर की तरफ, दैट डजंट मीन। मतलब ये है कि ब्रेक को ब्रेक का मतलब यहाँ पर ये है कि जो अज्ञान कैटाकोम की तरह ये जो खिड़कियाँ हैं, इनके लिए अज्ञानता से भरी जो खिड़कियाँ हैं, जो दरवाजे ज्ञान के इनके लिए बंद हो गए ना, उन दरवाज़ों को तोड़ डालो, उनको खोल डालो और उन्हें भी पता चले कि शहर भी है। शहर का मतलब यहाँ पर है कि इस फोग भरी स्लम से बाहर भी दुनिया है। और ये उन्हें कब पता चलेगा, तब पता चलेगा जब गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, इवन टीचर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाएंगे, उनको अच्छे से नॉलेज देंगे, उनको अच्छे से स्टडी करवाएंगे। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड एंड मेक दियर वर्ल्ड रन एज योर ऑन गोल्स एंड। और क्या कह रहे हैं पोइट, जब ये ब्रेक हो जाएंगी, ये जो खिड़कियां हैं जब वो ब्रेक हो जाएंगी, तो बच्चों को जाके दिखाओ कि केवल ये जो फोग से भरी हुई स्लम की जो नैरो स्ट्रीट है ना, केवल ये ही दुनिया नहीं है। दुनिया केवल उतनी ही नहीं है जितनी उन्हें खिड़की से बाहर दिखाई देती है, बल्कि इस दुनिया में तो हरे भरे घास के मैदान भी होते हैं। इतना ही नहीं, अगर हरे भरे घास के मैदान होते हैं तो यहाँ पर रन एज योर ऑन गोल्ड सैंड, यहाँ पर सोने जैसी चमकती हुई रेत के मैदान भी हैं। एंड लेट दियर टंग रन नेक्ड इनटू बुक्स, और उनकी जो जुबान है ना, उनको नंगी जुबान को किताबों पे दौड़ने। तो इसका यहाँ पर क्या मतलब है कि जुबान जिसको हम कहते हैं ना कि लर्न बाय हार्ट, ये जो किताबें हैं ना इनकी, उनको लर्न बाय हार्ट हो जाए, कि बहुत अच्छे से उनको ये किताबें याद हो जाए। इतनी नॉलेज तो एटलीस्ट इनको आ ही जाए कि अपनी किताबों को ये अच्छे से पढ़ लें, कम से कम लेटर्स को, अक्षर ज्ञान इनको इतना हो जाए कि अपनी किताबों को ये लोग अच्छे से पढ़ पाएँ, रन नेक्ड, बहुत अच्छे से फर्राटेदार अपनी किताबों को पढ़ पाए। इतनी नॉलेज तो इन बच्चों को दे ही डालो। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स अपॉन, तो क्या कह रहे हैं, ये जो किताबों की वाइट और ग्रीन लीव्स है ना, हरी और सफ़ेद पत्तियां, हरी और सफ़ेद पत्तियों का क्या मतलब है, जो बुक्स होती है ना वाइट कलर के, इसके पेपर होते हैं, और ग्रीन कलर की जो इंक होती है ना, इट मीन्स क्या है कि इन बच्चों को कम से कम इतना नॉलेज, इतना ज्ञान तो दे ही दो, इतना तो स्टडी करवा ही दें। ये गवर्नर, विजिटर और इंस्पेक्टर एंड टीचर्स, ये सब लोग इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटीज़ निभाएं कि ये जो बच्चे हैं ना, ये इन किताबों के जो पत्तियां हैं, पत्तियां का यहाँ पे मतलब है जो इन बुक्स के जो पेजेस हैं ना, उनको खुद से पढ़ सकें, उनको अच्छे से पढ़ सकें। जब वो पढ़ लेंगे तो शायद उनको नॉलेज भी मिल ही जाएगी। आगे कहते हैं पोएट, ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज सन, हिस्ट सॉरी हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज सन। अगेन, हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज सन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो क्या कहने का मतलब है पोइट का मतलब है हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज सन, इतिहास में उन्हीं का नाम होता है जो सूर्य की तरह ज्ञानवान होते हैं, सूर्य जैसे चमकते हैं, या ये कह सकते हैं कि सूर्य जैसे तप के अपने ज्ञान को बढ़ा लेते हैं। इतिहास में उन्हीं का नाम दर्ज होता है, इतिहास उन्हीं को जानता है, या इतिहास में उन्हीं को जाना जाता है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड पोएम नंबर 2। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ ही गई होगी। सो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको पोएम समझ में आई या नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।